through a couple of slides, because generally I'm not very much of a PPT person. But just for reference, I mean, these are just talking points. And as I said, I'll be talking to you guys more and discussing more rather than just, going over a PPT. So because we are talking about fundraising, I'll just give you a quick background of where I come from and where I started from, to give you a context. Or so I started 10 years back from now, and 10 years back I was 19 years of age, when most of you must be right now. So when I was 19 years of age, I started my first startup, which was a media platform. तो उस टाइम, मतलब आज से 10 साल पहले, स्पेशली आई स्टार्टेड फ्रॉम माय होम टाउन, विच इज बेसिकली जयपुर. एंड आई एम श्योर यहाँ भी बहुत लोग टियर 2, टियर 3, टियर 4 से होंगे, एंड दे वुड नो दैट 10 साल पहले एक छोटे शहर में, एक टियर 2 सिटी में, वो कोई इकोसिस्टम नहीं था. इनफैक्ट स्टार्टअप वर्ड भी एज सच इवॉल्व नहीं था. And this was a period when companies like Your Story, they were also very new. So मैंने डिसाइड किया, बिकॉज आई हैड अ पैशन फॉर कंटेंट, आई हैड अ पैशन फॉर राइटिंग कंटेंट. तो मैंने डिसाइड किया कि आई स्टार्ट अ मीडिया प्लेटफॉर्म. और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा था. सो यू कैन इमेजिन स्टडीइंग फाइनेंस एंड वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव कोर्सेज, एंड इन पैरेलल रनिंग माय ओन स्टार्टअप, जो मुझे एक्चुअली बहुत टाइम बाद रियलाइज हुआ कि इसके लिए स्टार्टअप जैसा कोई वर्ड है. बिकॉज उस टाइम इकोसिस्टम इतना इमेच्योर था, इतना नया था, दैट I just started out of passion. I did not know that there is a term for it. There is a support system. There is an ecosystem. I mean, you guys are lucky that you have sessions like these. You have your college, supporting you. E-cells are there. But उस time ये सब ecosystem नहीं था. In fact, as a matter of fact, we were the second startup in the history of Rajasthan that got funded. So, और हमसे पहले सिर्फ कार देखो है. So I mean, there is no other startup before us who had gotten funded. So I started when I was 19 years old. By 21 years of age, I had already raised my first round of funding. और ये again, as I said, ये 8-10 साल पहले की बात है, और उस time funding ecosystem बिल्कुल भी mature नहीं था. So I raised my first angel round for my media platform. And in the next 3 years after that, I mean, we raised a total of more than 2 crores in INR, and we created a company that was known across 10 countries for technology and startup news, because it was a news platform. तो हम लोग 10 countries से reporting कर रहे थे, हम लोग video channel चला रहे थे. We were doing a lot of content in 7 languages, 10 countries. So it was massive. It was more than 2 million views a month. And at one point of time, I mean, we were in conversation with Your Story and Inc. 42 to acquire them. We were that big. So, मतलब वो एक stage था that we had achieved. We had raised more than 2 crores in funding, as I said. And the entire process of fundraising, उसके बाद वो 2 करोड़ रेज करने के बाद रियलाइज हुआ कि फंड रेज करना ही नहीं चाहिए था. So, that is how you learn in the startup ecosystem. That is how you learn and make mistakes and learn in entrepreneurship. So that is how it started. फिर फंडरेजिंग का काफी एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद, एंड देन फाइनली देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, देयर वर अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ऑब्वियसली यार, हम लोग 23-24 साल के थे, एंड वी आल्सो मेड our own mistakes. And I mean, you guys would relate with it a lot, because you guys are going through that age right now. But we learned from our mistakes, and finally, whatever challenges I faced, it was a very difficult period, and then finally I moved on from that startup. I sold my shares. I took an exit from my own company, and I sold my shares to my partner, and I moved on. So technically, I mean, if you look back at history, I mean, it was a successful exit because I got good money for my shares. But obviously, it is all just in words कि वो successful exit था, because obviously you are leaving your own company, you are leaving your own baby and moving on. So I faced those challenges, and finally, my passion brought me back to content and marketing, and I finally created TBC Consulting. So बीच में job भी करी and all of that, but that is a long story. So finally I created TBC Consulting, which is basically the idea of establishing this 5 years back was कि हमको content और marketing में कुछ ऐसे इनोवेटिव कंटेंट मार्केटिंग करनी है that India has never seen, and we can create a global brand in content marketing in India. So TBC Consulting started with that vision क्योंकि content में passion था, as I told you. In last 5 years, if I speak about today, like we are working with more than 120 clients across 6 countries. We are working in US, UK, Nepal, Singapore, India.
तो हम लोग 6 कंट्रीज में क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं. वी वर्क ऑन देयर कंटेंट, वी वर्क ऑन मार्केटिंग. वी आर अ 60 पीपल टीम. हम लोग वी आर स्प्रेड आउट इन जयपुर, बैंगलोर, दिल्ली ऑफिसेस. एंड दिस इज हाउ टीबीसी कंसल्टिंग स्टार्टेड. इवेंचुअली हमारा एक पूरा एकेडमिक काम है विच इज टीबीसी लर्निंग. देन वी हैव अ वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियो जहाँ पे हम लोग ओटीटी शोज बनाते हैं. हम लोग बहुत सारा वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वीडियो स्टोरी टेलिंग करते हैं, विच इज टीबीसी स्टूडियो. Then I also run, we have a media wing जहाँ पे which is basically India's first OTT platform for startups and entrepreneurs. तो अगर आप techsamvad.com पे जाओगे तो आपको एकदम Netflix और Amazon Prime जैसा इंटरफेस दिखेगा. सीजन्स हैं, एपिसोड्स हैं, and all of that. But the entire content is only in the niche of technology and startups. And finally, last year during COVID, we started TBC Foundation, which is nothing but our social causes and the causes that we support. I don't like to talk or market it a lot, so I mean that's just when we realized that people need to come together and we need to do our bit as a company towards the society. That's when we created that. But essentially, all of this together creates the TBC group. Which is now it has been 5 years and we are now growing as end-to-end consulting company. और ये जो एक्सपीरियंस था फंड रेज का उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखी जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. एंड I just wanted to set the context so I have raised funds, I have approached investors. There is no investment firm in the country, at least in Asia, in fact, which where I don't know people. But after that entire experience, I decided I will not raise funds personally. But I help a lot of startups. I consult a lot of startups in raising funds. I even invest in startups. So with all that experience combined, I'm just going to share a couple of quick things with you, which might help you in your experience. और इसलिए यार मतलब बिकॉज मैंने यंग स्टार्ट किया था इसलिए आई लव डूइंग सेशंस विद कॉलेज स्टूडेंट्स बिकॉज इफ यू कैन गेट एनी हेल्प फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड व्हेन आई वाज 20 तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. इनफैक्ट आई विश कि मुझे उस टाइम कोई सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम होता, मेंटोर होता, कुछ ऐसा होता. सो एनीवेज आई मीन गोइंग फॉरवर्ड आई वुड जस्ट क्विकली फर्स्ट टेक यू थ्रू अ बेसिक क्वेश्चन कि व्हाई रेज फंड्स. जैसा मैंने कहा कि फंड रेज करने ही क्यों है, मतलब क्या जरूरत है एक स्टार्टअप को फंड रेज करने की, तो उस पे मैं कुछ बातें करूंगा. एंड आई शो यू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ फंड रेज ऑल्सो. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑल रोजी की पैसा उठा लो, स्टार्टअप बना लो, $1 million उठा लो और $10 million की वैल्यूएशन दिखा दो. बट आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल्सो शो यू सम रियलिटीज ऑफ फंड रेज. सो सबसे पहले एक जो सबसे रीसेंट ट्रेंड आया है फंड रेजिंग का, दैट इज बिकॉज व्हाई फंड रेज एंड पीपल एंड यू वुड सी अराउंड यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट पीपल रेज फंड्स टू गेन क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट. अगर आप फंडेड स्टार्टअप हो तो आपकी इंडस्ट्री में क्रेडिबिलिटी है. हो सकता है कि ओयो से बेहतर कोई काम कर रहा है या देयर आर कंपनीज व्हिच आर प्रोवाइडिंग बेटर हाइजीनिक क्लीनर स्टेज cheaper than Oyo, but they would not be popular because they have not raised funds or they are not a unicorn by valuation, but their service would definitely be better. So this happens. So this is just a human psychology. अगर आप funding raise करोगे, आप PR करोगे, न्यूज में आओगे, you will gain credibility. So सबसे पहली जरूरत जो मुझे लगता है कि एक स्टार्टअप को फंड रेज की होती है, that is to gain credibility. सेकंड आई थिंक यू नीड टू टैप रिसोर्सेज बियॉन्ड मनी. सो आजकल क्या है कि पैसा रेज करना आसान है. इट इज इजियर टू रेज फंड्स. ऐसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जो स्टार्टअप्स में पैसे डालते हैं. इवन ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैव स्टार्टेड लुकिंग एट स्टार्टअप्स टू इन्वेस्ट. But it is about the resources that you can tap beyond money. I'm going to talk about this a lot in the coming slides also, but because this is a very important point. So you need to basically choose your investors कि वो आपको पैसे के अलावा और क्या दे सकते हैं. वो नेटवर्क हो सकता है, कोई हो सकता है आपको ऑफिस स्पेस दे रहा हो, कोई हो सकता है आपको आईटी सपोर्ट दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है. I'm just giving examples, but it could be a network, it could be business, it could be global expansion, कुछ भी. So what are you getting beyond money is very important when you raise funds. और इसी का एक्सटेंशन है नेक्स्ट पॉइंट दैट असिस्टेंट्स विद स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन. सो वो इन्वेस्टर समझदार हो, मेंटोर हो आपका, आपको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी में दे हेल्प यू, देन यू नीड टू रेज फंड्स. एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू रेज फंड्स इज टू स्केल अप फास्टर. व्हाई इज
why is everybody raising fund? Why are all the startups raising funds? ऐसा नहीं है कि funds के बिना या fund raise के बिना आप काम ही नहीं कर सकते या फिर you cannot do business. In fact, traditionally businesses have been done without any angel investors या seed investments and all of these terms. But investment या funding जरूरी है क्योंकि आपको faster scale up करना है. It can help you in hiring, it can help you in marketing, user acquisition, customer acquisition, sales and a lot of other things. तो जो फास्टर ग्रोथ है उसके लिए फंड रेज करना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है. बीट कंपटीशन, तो आजकल तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आई मीन पेटीएम विल रेज फंड्स इफ फोन पे इज रेजिंग, फोन पे विल रेज फंड्स इफ XYZ इज रेजिंग. क्योंकि आपको अपने कंपटीशन से ज्यादा स्पेंड करना है, आपको अपने कंपटीशन से ज्यादा हाईलाइट होना है और आपको अपने कंपटीशन से ज्यादा एडवर्टाइजिंग करके यूजर्स एक्वायर करने हैं. सो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल वुड रेज फंड्स टू बीट देयर कंपटीशन एंड बी अहेड ऑफ देम इन विजिबिलिटी. एक जो बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल क्रिटिकल चीज है, दैट इज टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस लाइन. सो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स वुड नीड मनी टू क्रिएट एन एंटायर न्यू डिविजन, क्रिएट एन एंटायर न्यू product or a service or something like that. So developing a new product, because then उस केस में आपको रिसर्च भी करनी होगी, R&D भी होगी, प्रोटोटाइपिंग भी होगी, सब कुछ होगा. तो द एंटायर प्रोसेस यू विल नीड मनी. Eight important, again another very interesting aspect is for geographical expansion. So पर्सनली स्पीकिंग, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ दैट व्हाइल वी वर एक्सपैंडिंग टू यूके, लंदन एज अ मार्केट हम लोगों ने फंड रेज किया जस्ट टू हेल्प अस इन दैट एक्सपेंशन. सो there are a lot of synergies that can be created. I'll give you a very nice example of this ki, I mean for example, a company like us, if they want to expand our services in London, और अगर कोई लंदन का ही एंटरप्रेन्योर है जो कह रहा है कि मेरे पास रेडी बिजनेस नेटवर्क है, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन योर लंदन यूनिट, इन योर ग्रोथ इन लंदन, then they can do that. So investment for geographical expansion allows you to create a lot of new synergies. और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मतलब वो आएगा तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है दैट आई विल टैप रिसोर्सेज बियॉन्ड मनी, वो भी अचीव होता है, हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी होता है, हमारा स्केलिंग अप भी होता है. सो there are multiple reasons that you raise funds for, but always there is a baseline. So geographical expansion is very important because every company today wants to go global. मतलब India as a market, अब तो geographies भी blur हो गई हैं, there are no boundaries to business. तो मतलब it's the best time to have go global or do have geographical expansion. So I think that is very critical. And एक जो नया ट्रेंड है जो कि मतलब सारे स्टार्टअप्स में एक फैशन है, वो ये है कि एक्विजिशन करने के लिए आजकल फंड रेज होता है. सो एक्विजिशन करने के लिए फंड रेज होता है कि मतलब बायजूस को अगर आप देखें, विच इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, दे ओनली समटाइम्स रेज फंड्स टू एक्वायर अदर स्टार्टअप्स. सो राइट नाउ they are raising funds to do more acquisitions in US, अमेरिका. तो वो एक बड़ा रीजन बन गया है बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग कि आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हो या फिर उसको खरीद सकते हो. तो दोनों ही चीजों के लिए आपको पैसे चाहिए, या तो आप उसको पैसे को खर्च करके उनसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर लो, या अगर आप ज्यादा पैसे रेज कर सकते हो तो आप उनको खरीद लो और उनको किल कर दो. सो that is how cut throat competition works. So Snehal is asking me what you refer to as expansion. Okay, Snehal, I'll just address your question because just to make it easier while we are talking. So expansion can mean a lot of things. तो ये geographical expansion हो सकता है, एक नई country में, एक नई city में, एक नए area में, एक नई geography में हो सकता है. Expansion can be a new product also, एक नया product, नई service, नया division, नया unit. Expansion can also be in terms of offices. मतलब मैं अभी दिल्ली में हूँ but मुझे बैंगलोर में ऑफिस खोलना है, that is also certain kind of an expansion. So expansion can mean a lot of things, and if you are a successful profitable business तो technically आपको expansion के लिए पैसे नहीं चाहिए होते. But if you are a startup and you want to scale up faster, तो for expansion you will need to raise funds. That is the basic aspect. So moving on, as I said, I'll be very practical and I'll show you the reality of fundraise as well. So I'll also tell you why not to raise funds. Fundraise क्यों नहीं करना ये भी मैं आपको साथ में ही बता देता हूँ. So सबसे पहले
ये बहुत बड़ा मिथ है कि पैसा रेस करना इज अ सिंपल प्रोसेस, मतलब सिंपल है, इट इज डेमोक्रेटाइज्ड, आजकल कोई भी पैसा रेस कर सकता है, कहीं से भी आप इन्वेस्टर को रीच आउट कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ फ्री प्रोसेस, इसमें बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। देयर आर लीगल कॉस्ट विच आर द बिगेस्ट कॉस्ट। अगर आप एक लॉयर भी रखोगे टू रीड आउट द टर्म शीट टू यू, तो वो भी पैसे लेता है। देयर इज लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगल कंप्लायंसेस, टर्म शीट्स, उसके बाद आपका जो कंप्लायंस आपको मिनिस्ट्री में करनी है, यू हैव टू इन्फॉर्म, यू हैव टू नोटिफाई, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोस लीगल कंप्लायंसेस, तो वो सब करने की भी एक कॉस्ट है। प्लस अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स फेल टू रियलाइज, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्पेशली इन इंडिया, कि फंड रेज करने करने करते हैं जब, तो वो ये भूल जाते हैं कि दे आर समवेयर और द अदर अफेक्टिंग देयर रेगुलर बिजनेस, बिकॉज दे आर गिविंग दैट सेम टाइम टू फंड रेज। अगर आप वही टाइम फंड रेजिंग पे लगा दोगे विच यू विल स्पेंड ऑन बिजनेस एंड अर्न मनी, सो दैट ऑल्सो हैज अ कॉस्ट। अगर मैं 1 लाख के क्लाइंट्स छोड़ रहा हूँ एक फंड रेज करने के लिए, तो 1 लाख शायद मैंने अपनी जेब से नहीं दिए, बट दैट 1 लाख मेरी कॉस्ट है। So you need to understand it like a finance person, right? You have to, because fundraising is not a child's play. It's not fun and games. It is a very very serious business. And when you are going out to fundraise, you need to realize the real cost of fundraising. और एक एक जब आप किसी भी इन्वेस्टर से बात करते हो, तो इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस दैट स्पैन्स आउट टू मंथ्स। मतलब वो लोग आपसे कम शीट्स मंगाएंगे, बहुत सारी डेटा मंगाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाएंगे, एंड इट विल टेक टाइम, एंड यू विल गिव दैट टाइम फ्रॉम योर बिजनेस, क्योंकि एट द एंड आप स्टार्टअप हो, आपके पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ है, आपके पास 100 जने 200 जने काम करने के लिए नहीं है। तो जब आप वो बैंडविड्थ वहां लगाओगे, तो यू विल डेफिनेटली लूज आउट ऑन सम बिजनेस व्हिच इज गोइंग टू बी योर कॉस्ट एज वेल। सेकेंडली, यू विल नॉट हैव प्राइवेसी, ऑब्वियसली आपका हर एक्सपेंस नोट डाउन किया जाएगा, आपके हर एक्सपेंस पे सवाल उठाया जाएगा, यू विल बी क्वेश्चन फॉर एवरी स्टेप दैट यू टेक, सो योर कंपनी विल टेक्निकली बी नो लॉन्गर योर कंपनी। सो आज बिकॉज टीबीसी में, एंड दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल दैट आई एम शेयरिंग विद यू, आई हैव नेवर रेज्ड मनी इन टीबीसी, and we run on an entirely profitable model. In fact, we are one of the most profitable global marketing companies. And I mean, I don't have to answer to anyone on the spends that I do. So I can choose that my team, who is traveling for my work, जैसे मेरे कोई भी any female who travels in our company, we ensure a 5-star stay to them. अगर कोई बैंगलोर जा रहा है क्लाइंट से मिलने, तो उसको वहाँ पे 5-star होटल होगा, बट इन्वेस्टर्स डोंट अलाउ दीज थिंग्स। Investors would immediately say that you need to cut down on this cost and ask them to stay in 3-star, 4-star, or whatever. But I don't want to compromise that with my employees. I want a happier team. So you don't get to take those decisions, because I have also run a funded startup. That is why I can say it with confidence, and I've seen all these things happen. So आपकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। आई हैव सीन ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन योर ओन। दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो रिटन इन द फोर्थ पॉइंट दैट डिसीजन मेकिंग पावर इज डाइल्यूटेड। तो ये एम्प्लॉइज या ह्यूमन रिसोर्स या इस चीज से रिलेटेड जो है, ये तो एक बहुत सुपरफिशियल चीज है, बट डिसीजन मेकिंग पावर इज आल्सो डाइल्यूटेड इन द सेंस दैट यू कैन नॉट टेक एक्सपेंशन डिसीजंस बाय योरसेल्फ। आप किसी क्लाइंट को हटाना चाहते हो या लाना चाहते हो, इस डिसीजन पे भी इन्वेस्टर्स कैन क्वेश्चन यू। So your that power gets diluted when you raise funds, and money obviously comes with a lot of terms and conditions. So आप कोई और business नहीं कर सकते, आप कहीं mentorship नहीं कर सकते, आप कहीं और अपना time spend नहीं कर सकते, and investors actually watch out on all these things. I mean, if you think that it is an easy process या बहुत easy है या child's game है कि आपने fund raise कर लिया, it's not like that. Investors track every activity of yours. अगर आप कहीं पे webinar भी कर रहे हो, और अगर मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ और अगर मैं फंडेड कंपनी होता, तो दे कुड हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस कि आप ऑफिस आवर्स में ये ऐसा क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस। सो दीज थिंग्स हैपन, एंड दीज थिंग्स हैपन एवरी डे, बट वी डोंट रियलाइज इट, बिकॉज इंडिया में फंड रेजिंग को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। सो दिस इज द रियलिटी दैट कम्स विद फंड रेजिंग। एंड one very important point that experts can actually blow it up as well. कभी कभी जब एक एक्सपर्ट की आपको जरूरत होती है डेफिनेटली एक बिजनेस में, बट कभी कभी हर चीज में एक एक्सपर्ट एडवाइस लेने से आप इम्पल्स अपनी लूज कर जाते हो। एंड आई हैव बीन इन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द लास्ट 11 years, एंड आई टेल यू पर्सनली कि इम्पल्स एक एंटरप्रेन्योर का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। सो
this is going to be the most important asset that you're going to lose. So experts sometimes take decisions very differently, and impulse pe decision nahi lene dete hain investors most of the times. Also, इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग इज एन एंडलेस सर्च, मतलब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है. बहुत कम ऐसा होता है दैट पीपल रेज फंड्स एंड देन दे स्टॉप रेजिंग फंड्स एंड दे बिकम प्रॉफिटेबल. आपने कभी ऐसा सुना है किसी स्टार्टअप का कि उसने फंड रेज करना बंद कर दिया एंड नाउ दे आर प्रॉफिटेबल? आई वुड लव टू नो अबाउट इट. बट most of the times, like I'm saying 95% of the times, fundraising is an endless process, because इसका रीजन बहुत ज्यादा डीप है. बट इन्वेस्टर्स डोंट अलाउ यू टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज द डे यू बिकम प्रॉफिटेबल यू विल पे देम बैक एंड गिव देम एन एग्जिट, एंड इन्वेस्टर्स डोंट वांट दैट. सो आप एक फंड डिपेंडेंट कंपनी बन जाओगे एंड इट विल बी अ विशियस साइकिल. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रेज फंड्स. सो दिस इज not to demotivate you, this is just the reality of fundraise, which is my duty to explain it to all of you. But coming back to our point कि फंड रेज कब करना चाहिए. सो अभी हमने बात करी कि क्यों करना चाहिए, व्हाई टू रेज फंड्स. अब हम बात करेंगे व्हेन डू यू नो दैट इन योर स्टार्टअप जर्नी यू आर रेडी टू रेज फंड्स. So first of all, you have a lot of interest from your end users or customers. आपने एक ऐप बना दी, ऐप को प्ले स्टोर पे डाला, सडनली आपके 1 million, 1 lakh, 1 million यूजर्स आ गए. Then you need funds, because that is exactly the point where you need to scale up and sustain that kind of user base. यही रिसेंटली कू ऐप के साथ ऐसा हुआ, मित्रों के साथ ऐसा हुआ. तो ऐसे बहुत सारे रिसेंट एग्जांपल्स हैं जो सडनली वायरल हो गए, एंड देन दे नीडेड फंड्स बिकॉज दे हैड इंटरेस्ट फ्रॉम द एंड यूजर्स. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज जब आपके पास 6 महीने का बैकअप फंड ना हो, नेक्स्ट 6 महीने आप अपनी कंपनी को सस्टेन करो, इतना कैश नहीं है, देन यू नीड टू फ्लश इन फंड्स इन योर कंपनी. थर्ड इज जब आपको ऐसा लगे इन योर स्टार्टअप जर्नी दैट यू नीड सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स. सो हर स्टार्टअप हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कॉर्पोरेट हो, फैमिली बिजनेस हो, हर बिजनेस को एक टाइम पे ये एक स्टेज आता है जहां पे दे नीड आउटसाइड हेल्प, दे नीड आउटसाइड कंसल्टिंग, दे नीड कंसल्टेंट्स, and that is where you realize that this is the time to raise funds as a startup. And one very important thing कि कब रेज करना चाहिए, जब आप ये स्टडी करो मार्केट में that न्यू कॉम्पिटिटर्स आर स्केलिंग अप फास्टर. सो जब नए कॉम्पिटिटर आ जाए मार्केट में और वो आपसे ज्यादा फास्टर ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली फंड रेज करना बहुत जरूरी है. और जो हमने इंटरेस्ट एंड यूजर्स की बात की, उस पर एक छोटा सा ग्राफिक है, इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. सो ट्रैक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन होती है स्टार्टअप के केस में. ट्रैक्शन इज नॉट जस्ट आपका यूजर बेस, मतलब आजकल ट्रैक्शन लोग कहते हैं 1 million पेज व्यूज या 1 million ऐप इंस्टॉल्स. उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कस्टमर रिव्यूज. मतलब अगर मेरे 10,000 कस्टमर रिव्यूज और वो पॉजिटिव हैं, देन आई हैव अ लॉट ऑफ गुड वर्ड अबाउट मी. Similarly, profit metrics, मतलब profit metrics तो सबसे अच्छा ट्रैक्शन है. If you have got profit on your books, nothing like that. और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस. तो अवार्ड्स हो सकते हैं, आपका पेटेंट हो सकता है, रिकॉग्निशन हो सकता है, आपको यूएस की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है या समथिंग लाइक दैट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है, बिकॉज दैट ऑल्सो डिफाइंस ट्रैक्शन. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम फंड रेज करने की बात कर रहे हैं, तो बिफोर यू रेज फंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक आउट ऑफ ऑल दी स्लाइड्स आई वुड से दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि फंड रेज करने से पहले सबसे पहली चीज जरूरी है दैट यू टॉक टू योर फेलो फाउंडर्स एंड द की पीपल इन योर कंपनी. सो अनलेस एंड अंटिल यू स्टिक योर टीम टुगेदर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 जने हैं की पोजीशंस पे, आपका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, आपका एक ह्यूमन रिसोर्स पर्सन है, आपका को फाउंडर है, और आप फंड रेज करने जा रहे हो एंड दे आर नॉट ऑन बोर्ड विद इट, या फिर एक मीटिंग हो रही है इन्वेस्टर के साथ एंड दे आर ऑन सम डिफरेंट पेज एंड यू आर ऑन सम डिफरेंट पेज. तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर, it is extremely important that you have a talk and bring everybody on the same page, because if anyone in your team is not up for fundraise, then you need to hear them out and understand why they don't want to raise funds. So everybody needs to be on the same page. Second, I think the most critical thing and something that I have personally faced, इसलिए मैंने बोला था ये बहुत important है कि take legal advice.
अब जैसा मैंने आपको बताया, आई रेज्ड माय फर्स्ट राउंड ऑफ फंड 9 years बैक। अब 9 साल पहले लीगल एडवाइस लेना भी आसान नहीं था, बिकॉज इवन लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिड नॉट नो अबाउट फंड रेज, दैट वाज सो अर्ली। अब तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी लीगल एडवाइस है, बहुत सारे लीगल स्टार्टअप्स ही हैं जो इस पे हेल्प करते हैं, बट लीगल एडवाइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज यू एंड अप साइनिंग वेरी बैड एंड मेस्ड अप टर्म शीट्स व्हिच शुड नॉट हैपन। तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर बहुत इजी होता है स्टार्टअप्स को, आजकल लोग बहुत ज्यादा गलत टर्म शीट्स होती हैं, बिकॉज हर जना आजकल एंजल इन्वेस्टर है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लीगल एस्पेक्ट एंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो legal advice is the most critical thing. Have a mentor, मतलब before you raise funds you should always have a mentor on board. वो mentors कभी भी फ्री में नहीं आते, they are big people, they have got very less time। तो या तो मेंटोर को आप पे करोगे मंथली, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन यूएस। आई डोंट नो इंडिया में क्यों मेंटरशिप या ज्ञान फ्री में मिल जाता है, बट इन यूएस पीपल पे फॉर मेंटोरशिप एंड दैट्स हाउ यू गेट गुड मेंटरशिप। So mentor is a must before you raise fund because they'll show you the right direction. As a young startup founder आपको सारी knowledge हो जरूरी नहीं है, तो या तो आप मेंटोर को इक्विटी देके अपनी कंपनी में लाओगे या फिर you will pay them to get them on board, right? So that will be very important. Next thing is gather your data. So when you raise funds, एक चीज बहुत जरूरी है कि आपका डेटा आपकी टिप्स पे होना चाहिए। कितने यूजर्स हैं, कितना एवरेज सेशन टाइम है, कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे रहते हैं, कहाँ बाउंस ऑफ होते हैं, बाउंस रेट्स क्या हैं, पेज व्यूज और यूनिक विजिटर्स में क्या डिफरेंस है। So ये सब, these are very specific terms that you need to have on your fingertips when you go out to raise funds. मतलब एक सिंपली एक इन्वेस्टर आपसे सिंपली पूछ सकता है व्हाट इज द एलटीवी ऑफ योर कस्टमर, व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर कस्टमर, एंड यू नीड टू हैव सच नंबर्स ऑन योर फिंगर टिप्स। एंड इसी का एक एक्सटेंडेड पॉइंट है दैट क्रंच द नंबर्स एज वेल। मतलब ये तो मैं आपके प्रोडक्ट डेटा की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई सेड मेरे 120 क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट मुझे एक्स अमाउंट एवरेज देता है, दिस इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द क्लाइंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट नंबर्स के केस में इट्स मोर फाइनेंशियल डेटा, तो वो भी आपके टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। कितना पैसा रेज कर रहे हो, उसमें से कितना ह्यूमन रिसोर्स पे जाएगा, कितना मार्केटिंग पे जाएगा, मार्केटिंग पे जो आप स्पेंड करोगे उसका रिटर्न क्या होगा, वो कैसे कन्वर्ट होगा। सो ऑल दीज नंबर्स हैव टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स बिकॉज दीज आर this understanding helps you raise funds. This understanding gives confidence to the investor कि वो सही इंसान में पैसा लगा रहे हैं, who knows his business, right? So वो दिखाना और वो समझना बहुत जरूरी है when you are a business owner, when you are a startup founder. And last and the most important thing is target the right investors. आजकल मैंने बार बार बोला that I'm going to keep coming back to this कि investors बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री में। हर जना एंजल इन्वेस्टर है, बट सही इन्वेस्टर ढूंढना बहुत जरूरी है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल से दैट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि इन माई इंट्रोडक्शन तान्या ऑल्सो मेंशन्ड, और मैंने भी कहा दैट आई इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। बट कोई भी अगर कहीं से भी मेरे पास आ जाएगा सिर्फ ये जान के कि मैं एक एंजल इन्वेस्टर हूँ, इट इज नॉट गोइंग टू मटेरियलाइज, इट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल। तो पहले पता करिए, बिकॉज आई राइट अ लॉट ऑन लिंक्डइन, एवरीबडी हैज अ प्रोफाइल, एवरीबडी हैज अ बैकग्राउंड। ये देखिए मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज डू आई लाइक, मोस्टली माय इंटरेस्ट इज इन फिनटेक और एजुकेशन टेक और मीडिया कंटेंट मार्केटिंग प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली रेलेवेंट स्टार्टअप्स आएंगे तो बेटर होगा। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। क्या मतलब अब आज की डेट में मेरे पास कोई मशीन लर्निंग का स्टार्टअप आए, ऑब्वियसली आई वुड बी वेरी एक्साइटेड, बट मैं उसको सही गाइडेंस और डायरेक्शन नहीं दे सकता हूँ, राइट? बिकॉज आई डोंट हैव द कोर कॉम्पिटेंस। तो वो उसका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। बट ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। आई माइट तो एंड उनको उसी चीज के लिए अप्रोच करिए। तो आई मीन यू माइट अप्रोच मी to support you, mentor you, help you as a machine learning startup। मतलब मैं 3 machine learning startups को currently mentor करता हूँ, but I don't invest in a machine learning startup. I would connect them with the right investors as a mentor, right? तो ये समझना जरूरी है कि मैं इन्वेस्ट किस में कर सकता हूँ और मैं किसको सही जगह पे कनेक्ट कर सकता हूँ, because I would know somebody in the entire industry. So ये रिसर्च करना और ये बैकग्राउंड स्टडी करना एज अ स्टार्टअप फाउंडर अपना टाइम बचाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मूविंग ऑन, कुछ फंड रेजिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, क्योंकि जब हम फंड रेज वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल, वीसी फंडिंग और एंजल इन्वेस्टर्स। बट कुछ और तरीके भी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव तरीके भी हैं, तो विल जस्ट गो थ्रू देम।
So सबसे पहला तो है bootstrap. You know, put in your own money, put in money from your savings and fund your own startup. My company TBC was bootstrapped. I put in my own money when I started out, and it turned out, okay for us. Second option is friends and family. तो जब भी यूजुअली जो कहते हैं, मतलब यूजुअली जो एक ट्रेंड है इंडस्ट्री में, दैट इज कि $100,000 से $500,000, एंड आई हैव टू टेल यू इन प्रैक्टिकल टर्म्स, तो 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का जो फंड रेज ब्रैकेट होता है रुपीज में, दैट इज यूजुअली फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो फ्रेंड्स फैमिली इज द सोर्स ऑफ फंडिंग. इनिशियली आप अपने आपके आईआईटी, यू आर फ्रॉम आईआईटी बीएचयू, आपका एक नेटवर्क होगा, आपके एलुमनाई होंगे, फ्रेंड्स होंगे, सीनियर्स होंगे, तो दैट इज फ्रेंड्स एंड फैमिली. Similarly, crowdfunding is a very interesting concept. You can go back and read about it. इसमें you raise money from the community, from people at large. और अभी आप recently देखोगे तो एक board game है by the name of Shasan, which is a political strategy board game. And do a case study on it. I mean, you guys will love it. It is they have raised more than 10 crores only from crowdfunding on Kickstarter. So बहुत interesting board game है. I'll send you the name in the chat box after the session, and you should definitely do a case study. They raised money from investors, but only from a marketing perspective to reach out to people. They raised money from crowdfunding also. So वो एक interesting option है. Then angel investment, venture capital, I'm sure a lot of you already know about it. कि how does that work? Then a lot of accelerator programs also invest money, right? So बहुत सारे एक्सीलेटर्स होते हैं, आप उसमें अप्लाई करिए. वाई कॉम्बिनेटर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सीलेटर है, वो भी $500,000 इन्वेस्ट करता है. हर एक्सीलरेटर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करता है. उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. कॉन्टेस्ट एंड पिच कॉम्पिटिशंस रेगुलरली होते रहते हैं. कोई 1 लाख प्राइज मनी, 10 लाख प्राइज मनी वाले भी होते हैं, 15 लाख वाले भी होते हैं. इफ यू आर लुकिंग फॉर स्मॉलर फंड, तो रेगुलरली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, जीतिए, एंड परफॉर्म वेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको अपना पिच इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है. सो रेगुलरली पार्टिसिपेट इन कंपटीशन एंड कॉन्टेस्ट. बिजनेस लोन्स ऑब्वियसली, अभी बिजनेस लोन्स मैंने सिर्फ इसलिए डाला पॉइंटर बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑफरिंग स्टार्टअप फ्रेंडली लोन्स. तो इंटरेस्ट रेट्स नहीं होते हैं, कोलैटरल फ्री लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, आपकी पर्सनल कोई भी बिलोंगिंग उसमें नहीं इन्वेस्टेड होती है. तो वो भी एक ऑप्शन है अपने स्टार्टअप में फंड डालने का. एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स. तो अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर एन एग्रीकल्चरल स्टार्टअप, तो एग्रो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं वेयर दे आर गिविंग आउट मनी, hard cash literally. And there are a lot of schemes for chemical and fertilizer startups also. तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी कर रही है which you need to research about. तो ये सारे ही options हो सकते हैं to fund your startup. And angel investor is not the only option. Obviously that is the most common one, क्योंकि बहुत सारे angel investors हैं इंडिया में, बहुत लोग फंडिंग कर रहे हैं, but that is not the only option is what I'm trying to say. तो ये कुछ चीजें हैं. Stages of fundraising, it's just that I find this image very interesting and very nice, so I decided to put it in. तो जब आप बहुत इनिशियल स्टेज पे होते हो, तो आप सीड कैपिटल रेज करते हो, which is angel investors and friends and family, as I told you, एक इनिशियल स्टेज पे. वहां पे जो एक ड्रॉप आता है, दैट इज कॉल्ड द वैली ऑफ डेथ. तो वहां पे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स डाई डाउन, वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं. देन ब्रेक इवन कम्स आइडियली. जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आपकी इनिशियल सीड कैपिटल के बाद आपका ब्रेक इवन आ जाना चाहिए एज अ बिजनेस मॉडल. अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस मॉडल फ्लॉड है. उसके बाद अर्ली स्टेज, लेटर स्टेज फंडिंग होती है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स, एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकते हैं, मर्जर एक्विजिशन स्टेज पे हो सकता है. देन सीरीज ए बी सी आते हैं स्टेज में. देन उसके बाद आईपीओ स्टेज होता है, जहां पे स्टार्टअप बहुत ही बड़ा हो जाता है. एंड देन पब्लिक मार्केट वेयर सेकेंडरी ऑफर, जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी में एज अ कॉर्पोरेट फंडिंग करती है या फिर उसको खरीद लेती है. सो ये एक स्टेज है. इंडिया में मैक्सिमम स्टार्टअप जिनको शायद आप जानते हो, जैसे इवन इफ आई टॉक अबाउट पेटीएम, ओयो, बायजूस, ये सब, दे आर ऑल लेटर स्टेज स्टार्टअप्स जो कि सी लेवल से आगे हैं, एंड दे आर इन हाई ग्रोथ स्टेज राइट नाउ. तो ये लोग सब सी के बाद वाली फंडिंग रेज कर रहे हैं, दे हैव स्टिल नॉट अचीव्ड आईपीओ. तो वो वाली स्टेज है जहां पे अभी मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इन इंडिया आर. और स्टार्टिंग सबकी यही होती है, स्टार्टिंग सबकी एंजल से होती है या फ्रेंड्स एंड फैमिली से होती है, एंड देन दे स्टार्ट राइजिंग अप. सो दैट इज हाउ दिस स्टेज वर्क्स. अब एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस. या
So could you elaborate the break-even part you said? Sorry, just a second. I'm just trying to find out who is talking. Yeah, can you please repeat? This is Sukshamta speaking. Okay. And would you elaborate that break-even stage that you talked about? Sure, definitely. So I'll just help you with that. So basically, break even first of all comes जब आपके when your expenses and your revenues are equal. So technically, break even is when you are earning as much as you are spending. तो अगर मैं महीने के 5 लाख रुपए खर्च करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग पे, तो और मैं 5 लाख रुपए कमा लेता हूँ, that I am on a break even. I am no profit no loss essentially. In layman language, there is no profit no loss. तो what I'm trying to say is जब आप seed capital raise करते हो, so you should achieve your break even at that stage for once. तो ऐसा नहीं है कि break even आने के बाद आप हमेशा profitable ही होते हो. एक point ऐसा आता है जहाँ पे मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख spend कर रहा हूँ, but at the same time उसके बाद हो सकता है मैं फंड रेज करूँ, आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर, तो ऑब्वियसली वो ब्रेक इवन वापस से लूज हो जाएगा. बट द फर्स्ट ब्रेक इवन ऑफ योर बिजनेस शुड कम बिफोर यू रेज an early stage fund or a VC fund. Otherwise, it is very difficult. क्योंकि एक सबसे important चीज ये समझना है that इंडस्ट्री में इंडिया में एटलीस्ट अभी मार्केट अब मेच्योर हो रहा है. सो नाउ इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट नॉट लुकिंग एट आइडिया स्टेज स्टार्टअप्स. अब कोई आइडिया लेके आता है कि मैं बना लूंगा या मैं कर लूंगा, तो वो चीज एंटरटेन नहीं करी जाती. सो नाउ इन्वेस्टर्स वांट कि आपका एटलीस्ट एक बार ब्रेक इवन अचीव हो गया, दैट यू हैव अर्नड एज मच एज यू आर स्पेंडिंग. सो and this does not include so break even technically jo term hai, because you asked about break even, so it does not include your office expenses, your travel expenses and all of that. It is the gross margin. मतलब आप marketing and human resource, जितना human resource और marketing पे आप spend कर रहे हो उतना at least आप अगर कमा लेते हो, then you are at a break even stage and you should achieve that before you aim for a bigger fund. So that is all it means basically. So moving on. Yeah. So moving on, just quickly going through how to raise funds. Very simple, मतलब basic process है, and just you guys should know about it. And I find this presentation very nice on how they have put it together. So prepare all the required documents first. As I said, अपने सारे data points, numbers, सब कुछ अपने आपके fingertips पे होना चाहिए. So you should have all your documents, all your numbers in place. First of all, make a list of potential investors. Who are those people investing in your industry? Who are the people who have invested in similar companies? Who are the investors who are in your network, and all of that. Start getting in touch with them. I'll talk a little bit more about that later. Pitch your startup. Start pitching your startup left and right. Pitch everywhere. Participate in contests, competitions, everything. Pitching events, speed dating events, all of those. There will be a entire process of Q&A जहाँ पे वो आपसे बहुत सारा डेटा मंगाएंगे, शीट्स भरवाएंगे, questions पूछेंगे and all of that. And then you get a term sheet if it goes well, if it is approved. अब जो term sheet है उसके लिए एक lawyer, एक legal advice लीजिए, उस पे पूरा due diligence करिए. इनफैक्ट इस प्रोसेस में इन्वेस्टर्स भी अपने एंड से ड्यू डिलिजेंस कर रहे होते हैं, तो दे डू देयर ड्यू डिलिजेंस एट दिस स्टेज एंड यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस. एंड देन finally, when everything is done, you sign the SHA, which is the shareholders agreement, where you basically transfer your company shares to the investors. तो जो बेसिकली प्रोसेस है दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एसेंशियली अगर आप देखोगे इन वेरी सिंपल टर्म्स, तो बस यही है कि आपको इन्वेस्टर्स सही ढूंढने हैं और उनको अप्रोच करना है. दैट इज ऑल. बट आई जस्ट टेक यू थ्रू सम insider tips which I have put down myself from my personal experience before I take questions from you guys. तो सबसे पहली चीज है insider tip में that plan to contact a lot of investors first of all. ये मत सोचो कि 5 इन्वेस्टर 10 इन्वेस्टर से काम होगा. जब आप 200 को टच करोगे तो 10 रिप्लाई करेंगे और 10 में से शायद एक कन्वर्ट हो जाए. सो दैट सॉर्ट ऑफ नंबर्स यू नीड टू टारगेट. जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, which I said I'll come back to in the end, is build relationships which last long. So इसके कहने का मतलब है कि so I'll tell you by my personal experience that whatever I created or whatever I have created or achieved, or the funds that I raised in my previous startup, everything happened through LinkedIn.
मतलब लिंक्डइन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। मतलब आपके पास तो यहाँ आते हैं, इतने सेशंस होते हैं, इतने वेबिनार्स होते हैं, यू शुड बी क्रिएटिंग योर नेटवर्क very strongly. You should be adding people left, right, and center. You should be connecting with people, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं। आई मीन आई एम टेलिंग यू एज अ करियर एडवाइस की मतलब जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे, व्हेन यू टॉक टू पीपल, और अनफॉर्चुनेटली आई अंडरस्टैंड अभी फिजिकल इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, अदरवाइज इट इज इवन अ लॉट बेटर, बट अभी भी लाइक लिंक्डइन इज कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज्ड एंड इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। Like currently, if I tell you transparently, 70% of the business that my company does has been acquired from LinkedIn. और ऐसा नहीं है कि ये कल बनाए हुए connections हैं या ये पर अभी last month added connections है, ये सब connections add हुए last 10 साल में. So people who I had connected in my previous startup, they have come back to me asking for marketing services, content services in my current company. So you never know how your network spans out. आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ आपका network utilize होगा and how it will turn out to be. कौन कब investor बन जाएगा, आपके खुद के batchmates कब किसी investment firm में काम करने लग जाएंगे, हो सकता है they go ahead and they work in Tiger Global or Sequoia Capital. So you need to keep in touch. You need to create that network, and LinkedIn is the most strongest tool to do that. So build relations that last long. और हर जने को सिर्फ फंडिंग के लिए ही मैसेज मत करो. जैसे approach them to have a session with you, approach them to have a webinar with you, approach them for any advice, any appreciate them for their work. उनको ये बोलो that I really love your work, I would like to take some advice from you. तो start creating those relationships and start connecting with people. That is very very important, because जब आप वो relationships build करोगे, and later in life, if you go for job opportunities or funding for your startups, it is going to help you everywhere. So this is the strongest takeaway advice that I can give you. As I said, ye insider tips mein maine isliye dala because I wanted to talk about it in the end, and this is the key takeaway that I can give you guys, that start using your network, start building a network first of all, and then using it. So अभी आप जिस फेज में हो, द एज एंड फेज दैट यू आर इन, यू नीड टू बिल्ड योर नेटवर्क वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज वो सिर्फ फंडिंग के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, फंडिंग पर्सपेक्टिव से, बट वो हर एरिया में आपको काम आएगी. मूविंग ऑन, एनीवे, आर्ट ऑफ नेटवर्किंग वैसे भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है. सो आर्ट ऑफ नेटवर्किंग इज इन सेल्फ अ सेशन, अ रिसर्च इन इटसेल्फ. तो प्रोबेबली इन फ्यूचर अगेन वील कनेक्ट सम टाइम एंड डू अ सेशन ऑन दैट. बट मूविंग ऑन, सो पिच में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बहुत सारे शायद पिच डेक स्टडी किए होंगे, हो सकता है उस पर अलग से आपके टॉपिक्स भी हुए हैं. एज आई सेड, पिच डेक इन इटसेल्फ इज अगेन अनदर सेशन इन इटसेल्फ. बट एक जो इनसाइडर टिप मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज कि आपके पिच में स्टोरी टेलिंग और पैशन होना बहुत जरूरी है. तो यू कैन नॉट जस्ट गो आउट एंड से कि दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय यूएसपी, दिस इज माय नंबर, these are my numbers. You have to build a story around it. What investor needs to know, ये मैं आपको बता देता हूँ कि investor needs to know कि आप क्यों सही इंसान हो वो स्टार्टअप करने के लिए. Why are you the right person to do that? People come up with amazing ideas. People come up with really innovative ideas. I receive almost, on an average, if not more, at least 3 to 4 messages every day कि ये startup है, every day. And trust me, that is the number of startups India has. कि हर दिन 3 या 4 मैसेजेस आते हैं कि ये आइडिया है, ये स्टार्टअप है, दे आर ब्रिलियंट. लाइक लॉजिस्टिक्स में, सप्लाई चेन में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, एवरी इंडस्ट्री इज राइट नाउ बजिंग विद इनोवेशन. बट द बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू द राइट पर्सन टू डू इट? व्हाट इज योर स्टोरी? किसी ने बचपन में अपनी फैमिली को उस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हुए देखा है, किसी ने अपने फ्रेंड्स को देखा है, किसी ने खुद ये प्रॉब्लम फेस की है, किसी ने फॉरेन में कहीं कोई पढ़ रहा था, उसने वहां पे ये प्रॉब्लम देखी. व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर स्टोरी दैट initiated the business opportunity for you? So I need to know that idea अच्छा है, सब ठीक है, you are skilled to do it, but why can't another person do it better than you, and why are you the right person to do that startup? So for that, coming back to the point, उसके लिए वो story telling आपके pitch में होना जरूरी है. So it doesn't have to be like a story. Don't consider it like कि एक paragraph की story लिख दी. It has to be the context कि why, what is your background that you are the right person to do that startup. एक और इनसाइडर टिप है बहुत इंटरेस्टिंग कि 3 बार से ज्यादा फॉलो अप नहीं करना चाहिए. सो लाइक आई सेड, इफ यू आर बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, लोग आपको जानते हैं, आपसे बात करते हैं, और फिर आप उनको फंडिंग के लिए अप्रोच करते हो, तो और अगर वो फिर रिप्लाई नहीं कर रहे, तो 3 बार से ज्यादा कभी फॉलो अप मत करना, बिकॉज अगर 3 बार में उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो बहुत कम चांस है आपके पास रिप्लाई आएगा. दिस इज साइंटिफिक फैक्ट, दिस इज डेटा.
So this is very important to understand, because then वो exactly the point कि फिर वो relationship खराब हो जाएगा, they'll find you irritating and spamming. So don't do that. Then decide between metric focus and big vision. तो आपका what is your USP? आपका USP आपके numbers हैं, your profitability, या फिर आपका बड़ा vision है. So आज की डेट में अगर हम ओयो की बात करें या पेटीएम की बात करें, दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी. अब उनका इससे बड़ा कोई विजन हो वो बहुत मुश्किल है. दे आर ऑलरेडी एट देयर विजन स्टेज. अब उनके नंबर्स बात करेंगे. अब देयर प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर ऑफ यूजर्स, रिकरिंग यूजर्स, ऑल ऑफ दैट विल मैटर मोर. सो you need to decide what is your focus. And सिर्फ पेटीएम ओयो की बात नहीं है, आपके लिए भी सेम ही चीज अप्लाई होती है. Is it the vision that you are selling or is it the numbers that you are selling? मैं खुद अगर अपनी पर्सनली आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं तो टीवीसी में आज से 1 साल पहले, मैं 1 साल नहीं, आई थिंक 2 साल पहले मैं विजन सेल करता था that this is what I want to become. Today I sell numbers because I have got those numbers. So it's just perspective, but you need to be clear in your mind कि जब आप क्यों, और ना मतलब ये लग रहा है ऐसा कि ये बहुत ही ब्रॉड लेवल डिसीजन है, बट व्हेन यू सिट एंड डिसाइड एंड लुक एट इट फ्रॉम अ स्टार्टअप फाउंडर पर्सपेक्टिव, आपको ये डिसीजन लेते टाइम बहुत सारी और चीजें क्लियर हो जाती हैं अपने पिच के लिए. सो व्हेन यू आर गोइंग आउट टू एन इन्वेस्टर, सच इंपॉर्टेंट ब्रॉड लेवल डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल. देन मैंने बार बार अपने सेशन में कहा ही है, एंड जस्ट आइटरेटिंग इट अगेन, कि प्री क्वालिफाई योर इन्वेस्टर्स. हर जने को मत मैसेज करो रैंडमली. सी वेयर यू कैन फाइंड द राइट फिट. बाकी लोगों को, हर जने को फंडिंग के लिए मैसेज मत करो बेसिकली. सो लुक एट व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेस्टर इज, what he can provide you with, if he is interested in this domain or not, and stuff like that. एक मेरा बहुत क्रिटिकल एडवाइस ये रहता है दैट डोंट रन योर बिजनेस लाइक मनी रेजिंग. फंड रेजिंग इज योर मेन मोटो. बिजनेस पे फोकस करिए. अगर आपके बिजनेस में नंबर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, देन मनी विल, मतलब आप जिस दिन चाहोगे रेज हो जाएगी यार. मतलब फंड रेजिंग, ऑनेस्टली, इफ यू हैव गॉट अ गुड बिजनेस मॉडल एंड इफ यू आर ऑलरेडी अर्निंग मनी, तो no one can stop you from raising funds. Like, investors are actually out there looking for startups to raise funds, trust me. So don't make it the main motto of your life. Focus on your business, and fundraising will be a part of it when the time comes. प्रैक्टिस और पिचेस एवरीवेयर. मतलब कांच के सामने खड़े होके, मिरर के सामने खड़े होके, फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, सबको अपनी पिच सुनाओ, सबको बोर कर दो सुना सुना के. जस्ट परफेक्ट योर पिच. क्योंकि रीजन आई एम सेइंग दैट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है विच आई विल क्विकली टेल यू, कि इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है. So people are not able to explain their pitch. मतलब I have heard brilliant ideas, but told in such a bad way, in such a shitty way, that I could not, understand what they mean. And when I decided to look at their website or their app or their product, I was blown away. So वो पिच परफेक्ट और वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करना बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हर जगह पिच करिए, हर कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, हर पिचिंग इवेंट में जाइए, हर नेटवर्किंग इवेंट में जाइए. और एक तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब आप कस्टमर से बात करते हैं, दैट्स योर स्ट्रॉन्गेस्ट पिच. तो जो आप कस्टमर को बोलते हैं अपना प्रोडक्ट समझाने के लिए, वो इंप्रूव हो गया तो आप इन्वेस्टर्स को इजीली कन्विंस कर सकते हैं. एंड एक इनसाइडर टिप है, शायद आप लोगों के लिए बहुत लेटर स्टेज टिप है ये, बट जस्ट शेयरिंग इट विद यू दैट एवरी टाइम यू रेज अ राउंड, इमीडिएटली अपना पिच डेक नया बना लेना चाहिए. सो दिस इज अ थिंग दैट आई लर्नड माई सेल्फ वेरी लेट. बट जैसे ही आप फंड रेज करते हैं, आपका पूरा पिच चेंज होना चाहिए, कंसिडरिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर माइलस्टोन और योर विजन. अब आपका क्या विजन है उसके बेसिस पे. So I think those are some insider tips that I had on fundraising. This is also the last slide. So I'll just have you guys ask me questions now and make it more interactive. Don't want to keep it a one-way communication. So if you have, like, you can raise hands, guys, if you want to speak out, or you can just put it in the chat. I'll address both ways. So I don't think Yeah, I there. had one Yeah, question. please go ahead. Please go ahead. Like, if a startup is at its like say ideation stage and now looking forward to like launch its product and gain its early
customers, it's like initial customers and everything. So in that case, like how fundraising is relevant or it should be avoided. What should be the process that So should be followed by it? yeah, By I understand. I understood your question part. So I think it's a very valid question. I'll take a worst case scenario. मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी फाउंडर ये स्टार्टअप कर रहा है उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मतलब they have got no savings at all. I'll take a worst case scenario. तो first option obviously is कि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेज करो. सो दो चीजें हैं इसमें. आई टेल यू. सो जीरो से वट एवर माइलस्टोन यू वांट टू कीप, लाइक जीरो से 1000, लेट्स कीप 1000 एज अ माइलस्टोन. जीरो से 1000 का जो कस्टमर बेस बढ़ाना है, जो फर्स्ट 1000 कस्टमर्स बेसिकली, आइडियल केस सिनेरियो दैट शुड बी ऑर्गेनिक. मतलब वो आपकी खुद के नेटवर्क से, मार्केटिंग से, आपके कॉलेज नेटवर्क से आने चाहिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली से आने चाहिए. मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट नोट द पॉइंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द कस्टमर्स एंड यूजर्स, या ऐप डाउनलोड या वेबसाइट, वट एवर, जो भी आपका प्रोडक्ट है. तो पहले 500, पहले 1000 यूजर्स आपके आपके खुद के नेटवर्क से, वर्ड ऑफ माउथ से और ऑर्गेनिक आने चाहिए. जब आप 1000 पे होगे, देन यू कैन रेज, इन्वेस्ट योर ओन मनी. You can push in money from your friends and family, again in whatever range possible, and then target 1000 to 10,000. जब आप 10,000 पे पहुंच जाओगे, या फिर आप 50, वट एवर इज द बेंचमार्क, अगेन जस्ट क्लैरिफाइंग इट, जो भी बेंचमार्क है आपके प्रोडक्ट का, उस पे पहुंच जाओगे, नेक्स्ट बेंचमार्क पे, देन इज द राइट टाइम टू अप्रोच एंजल इन्वेस्टर्स. और अगर इस प्रोसेस में से फॉर एग्जांपल एंजल इन्वेस्टर्स तक पहुंचते पहुंचते आपका बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल स्ट्रांग है, और ये हर कस्टमर से, सपोज लेट्स टेक अ सिनेरियो जहां पे हर कस्टमर सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स है आपका, आपने ओटीटी बनाया है, एंड एवरी कस्टमर इज पेइंग यू 200 रुपीज एवरी मंथ. सो अगर आप 10,000 पे पहुंचते हो एंड यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आप सीधा एंजल स्किप करके यू कैन गो फॉर अ वीसी राउंड ऑल्सो. तो आपका जो फंड रेज प्रोसेस है, दैट विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स बेसिकली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. एक यूजर बेस, कि आप किस बेस ऑफ यूजर पे बैठे हो, और सेकंड इज द रेवेन्यू मॉडल एंड द रेवेन्यू नंबर्स. तो दोनों चीजें ऑब्वियसली मतलब हैंड इन हैंड है. कई बार यूजर्स 1 मिलियन होते हैं स्टार्टअप्स के, लेकिन रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता है. वी नो, ऑल ऑफ अस नो, आई एम श्योर यू आल्सो नो अ लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स. और ऐसा भी बहुत बार होता है कि कई बार अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है, अगर आप ऑडी हो या बीएमडब्ल्यू हो, तो आपके 50 कस्टमर से भी आपका 1 करोड़ रेवेन्यू आ जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज, but that is the kind of cycle you should follow. So first 100 customers, first set of customers should be organic, should be from your network, from your friends, family. That is why, again, just saying it, that your network building is very important. आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालो, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करो और आपके 50 कस्टमर आ जाए. दैट इज द सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग यू नीड टू डू इनिशियली. उसके बाद यू कैन स्टार्ट सीइंग, लुकिंग एट सोर्सेज ऑफ फंड्स. सो दैट इज हाउ इट शुड बी आइडियली. Okay, yeah, got it. And like I had one more question. Like initially in the start, you like mentioned that like you had a media startup, Yeah. and you like regret that you raised the funds initially. Like, what was the reason then? Yeah, so okay, Parth, I'll tell you. So basically, so I'll not say that I regret raising funds. First of all, it's just that I realized that what I said is, I realized that I should not have raised funds back then. So I'll tell you what happened. What happened was that हमने जब first fundraise किया था, we were 20 years of age, as I told you, 2021 somewhere like that. मतलब मेरी CA की डिग्री भी complete नहीं हुई थी. Although I'm a first attempt, I cleared my degree in first attempt, but उस time नहीं हुई थी. So I was 2021 when I raised my first round of funds, and I had zero knowledge of how tech term sheets work. So the only mistake that I regret, or as I told you, or as I said that I wish I could look back and take another decision, was that I signed the wrong term sheet. It was very, very binding. It was very, very how do I say it? Like, it was very, very investor friendly, not startup friendly at all. And we so imagine, like 10 years back from now that you asked the personal experience, imagine 10 years back from now, a startup, 20 साल के दो लौंडे, आई मीन आई एम सॉरी, बट 20 साल के दो लड़के जो स्टार्टअप कर रहे हैं, 20 साल की उम्र है, एंड यू गेट टू नो दैट यू आर रेजिंग फंड्स, एंड 200 investors you messaged, and people replied, and you can actually raise funds.
तो आप इतना सोचते ही नहीं हो, you get my point. So that is the sort of mistakes that you make at an early stage, and it is okay. Like ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको ये सब बता दिया है तो आप लोग ये गलतियां नहीं करोगे. You will also make your own mistakes, and it's okay to make those mistakes and learn from them. But that is basically what happened. So it was just the wrong term sheet that we signed, and that is why I put a lot of focus on legal advice and taking the right advice and going for the right term sheets and all of that. So it was just a very wrongfully binding agreement that we got into. नेक्स्ट 3 साल वो चीज रियलाइज नहीं हुई बिकॉज वी रेज्ड अ लॉट ऑफ फंड्स आफ्टर दैट आल्सो. बट वो फर्स्ट टर्म शीट का जो जो झटका था या जो बैड वो था, वो बहुत बाद में पता चला, बैड इम्पैक्ट. सो दैट इज ऑल. Yeah, and I had one more question. Yeah. If like there are like many early stage ventures who like just focuses on early stage startups, and what they focus more on is providing mentorship and networking, and then they later invest in them. So what are your views on them? So I'm sorry, but I did not understand. So are you talking about early stage early stage Like, investors or early stage startups? Early stage investors. So I mean, what is your question exactly? So like there are like many early stage investors who like focuses more on say providing mentorship and networking initially, and then they like provide a seed funding. So what are your views on it? So I think Parth, in fact, I would be very fair that that route is in fact better. So मैंने पहले भी कहा था, पैसा रेज करना प्रॉब्लम नहीं है. फंड रेजिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम. Trust me, if you really wish, I mean, the kind of questions that you're asking, they are very intuitive. So if you really wish to do a startup, and when you do a startup, you will realize that बहुत investors हैं इंडिया में जो पैसा डालने के लिए रेडी हो जाएंगे. Again, those might be very bad or very shitty term sheets, but whatever. There will be investors, is what I'm trying to say. जो आपको डिसाइड करना है वो ये है कि आपको राइट मेंटोरशिप मिलनी चाहिए, राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा कोई भी दे सकता है बट डायरेक्शन हर जना नहीं दे सकता. एज आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि मैं एक मशीन लर्निंग स्टार्टअप को शायद पैसे दे सकता हूँ, बट मैं एक मशीन लर्निंग स्टार्टअप को कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं दे सकता अनलेस दे आस्क मी फॉर मार्केटिंग एडवाइस. बट मैं बिजनेस वाइज या प्रोडक्ट वाइज उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता. सो जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सही डायरेक्शन किसके साथ मिलना चाहिए. और ऑब्वियसली दैट इज मोर क्रिटिकल ऑन अर्ली स्टेज. एक स्टार्टअप के मैच्योर होने के बाद शायद वो डायरेक्शन या मेंटोरशिप की जरूरत नहीं होती. बट व्हेन यू आस्क्ड मी स्पेसिफिकली फॉर अर्ली स्टेज, तो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट. फोकस ऑन द डायरेक्शन, फोकस ऑन द मेंटोरशिप. फंडिंग वो लोग भी कर देंगे या फिर कोई भी कर देगा, बट मेंटोरशिप एट दैट अर्ली स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Hello, sir. I also have a doubt. Yeah, please go ahead. If some startup is in the ideation phase, and if we want to validate the idea that it is relevant or not, sir, how can we actually do that? So you want to ask me, like, basically your question is कि idea को validate कैसे करना है? Sir, yes. तो यार see, I'll tell you, idea validation का जो मतलब, so I do a lot of workshops on idea validation itself. So idea validation is a session in itself. But अगर मैं quickly आपको बताऊं तो जो बेस्ट तरीका है, और मैं ये हर सेशन में कहता हूँ आइडिया वैलिडेशन की, कि आपके पास आपका कॉलेज नेटवर्क है, विच इज लाइक आई विल टेल यू पर्सनली बाय माय एक्सपीरियंस कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है दैट यू कैन हैव. यू हैव sorry you have hundreds and thousands of students around you. आपका पूरा नेटवर्क है, एंड होपफुली कि मतलब वो जल्दी कॉलेजेस भी खुल ही जाएंगे. सो आपका आइडिया वैलिडेशन तो आपके आसपास के नेटवर्क से ही हो जाएगा, एक नॉर्मल सर्वे से ही हो जाएगा, या फिर आपके फ्रेंड्स फैमिली से हो जाएगा. सो आइडिया वैलिडेशन का सबसे पहला तरीका ये है कि डू इट ऑन पीपल अराउंड यू, एंड डू इट विद पीपल मतलब जो actually who are going to be the end users. अब I'll again give you a personal example, easily understandable example, कि अगर आप मुझे मैसेज करोगे लिंक्डइन पे randomly and we don't know each other, और आप मुझे बोलो कि सर ये मेरा आइडिया है, is it good or bad? I am not the right person to judge it. मतलब डिपेंड करता है क्या मैं उस आइडिया का यूजर हूँ.
क्या मैं आपके प्रोडक्ट का सही यूजर हूँ, तो शायद मैं यूज करके आपको फीडबैक दे दूंगा, बहुत ऑनेस्ट फीडबैक दे दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो उसके सही यूजर्स हैं उनसे टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है। सो आइडिया वैलिडेशन का सबसे पहला तरीका और सबसे इजी और सबसे सस्ता तरीका ये है कि आप अपने आसपास देखिए हु यू कैन टेस्ट इट ऑन, हु यू कैन टेस्ट इट विद, या आप किससे यूज करवा के देख सकते हैं। यार दोस्तों में तो आप जबरदस्ती बोल सकते हो कि यार डाउनलोड कर और बता कैसा ऐप है, राइट। सो वो करना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि दोस्त सच भी बोलेंगे, दोस्त आपको फालतू की तारीफ नहीं करेंगे, वो बोल देंगे अगर घटिया प्रोडक्ट है तो बोल देंगे कि यार मजा नहीं आया, तो वट एवर। बट मतलब पीपल अराउंड यू, पीपल यू कैन अप्रोच इजीली, they are the best people to validate your idea if it is a consumer product. Thank you, sir. Sure. Any other question, guys? हेलो सर। हाँ देव भाई बताओ, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के बाद में फंडिंग राइज करनी चाहिए या एक्सीलरेटर में जाना चाहिए? इंक्यूबेटर के बाद फंडिंग रेज करनी चाहिए, एक्सीलरेटर में रहना चाहिए? सो यार देव ये तो मतलब बहुत ही स्टार्टअप का पर्सनल क्वेश्चन है यार। मतलब ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो बात ये है कि एवरी स्टार्टअप हैज इट्स ओन जर्नी। हर स्टार्टअप की अपनी जर्नी, अपनी स्टेज होती है। अब इंक्यूबेटर के बाद ये कैसा स्टार्टअप है, क्या नंबर्स हैं, ये किस इंडस्ट्री का स्टार्टअप है, ये हम जाने बिना, तो बेसिकली यार एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं होता कि उस स्टार्टअप ने इंक्यूबेटर के बाद फंडिंग रेस करी तो और वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि वो स्टार्टअप की क्या जर्नी है, वो किस स्टेज पे है, क्या उसने फेस किया है, वट एवर। इंक्यूबेटर के बाद उसके नंबर्स इतने स्ट्रांग हैं कि उसको इजीली फंड रेस हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको फंड रेस करना चाहिए। अगर इंक्यूबेटर के बाद भी उसको और डायरेक्शन चाहिए और मेंटरशिप चाहिए तो फर्दर एक्सीलरेटर में जाना चाहिए। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अ स्टार्टअप जर्नी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम तभी मतलब ये बहुत डीप क्वेश्चन है किसी स्टार्टअप के लिए हमें डिसाइड करना, वी नीड टू नो द एंटायर जर्नी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, ये फंडिंग राइज करते समय वैल्यूएशन पे फंड राइज होता है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? सी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोल सकते हैं? हाँ हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था जब कोई भी फंड राइज करते हैं तो वैल्यूएशन डिपेंड करता है, जैसे इक्विटी डाइल्यूट होगी, तो ये किस चीज़ पे डिसाइड होती है? या तो देखो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस का एटलीस्ट इंडिया में तो कोई भी सेट फॉर्मूला नहीं है। आज कोई भी अपनी वैल्यूएशन $1 मिलियन भी बोल देता है, कोई $10 बिलियन भी बोल देता है, और सरप्राइजिंगली मतलब उसको फंडिंग भी मिल जाती है। तो एज अ फाइनेंस पर्सन, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है। बट अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो मतलब अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूं एक बहुत सिंपल टर्म्स में, तो दो तीन थंब रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी तो सब कुछ आजकल इन एयर है, मतलब सब कुछ हवा में है वैल्यूएशंस। बट अगर मैं आपको कुछ थंब रूल बताऊं विच विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, तो एक रूल ये है कि जितना आपकी कंपनी पैसा कमा रही है, जो आपका रेवेन्यू है, उसका 4 times to 5 times इज योर वैल्यूएशन। तो अगर एनुअल रेवेन्यू का, तो अगर मेरी कंपनी एनुअली 1 करोड़ रुपए कमा रही है तो मेरी वैल्यूएशन 4 से 5 करोड़ रुपए है। अगर मेरी कंपनी 50 लाख कमा रही है तो मेरी वैल्यूएशन अराउंड होगी मतलब 2 करोड़ 3 करोड़। सो जस्ट लाइक दैट। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आजकल स्टार्टअप्स नंबर्स से ज्यादा, मतलब पैसों से ज्यादा यूजर्स पे डिपेंड होते हैं, डेटा पे डिपेंड होते हैं। तो यूजर बेस आपका कितना है और उससे आप लाइफ टाइम वैल्यू कितनी निकाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए नेटफ्लिक्स का यूजर बेस है 1 लाख का, और वो 1 लाख लोग उसको टोटल लाइफ टाइम में 5 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मतलब एक यूजर मैं हूं, मैं उनको 500 रुपए महीना देता हूं, तो मेरा एनुअल वैल्यू इज 6000। तो उस हिसाब से वो 100 मतलब 1 लाख यूजर्स कितना दे सकते हैं, और उसका 5 टाइम्स उनकी वैल्यूएशन होगी। सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, बट मुझे ये जानना होगा कि कौन किसको कितना वैल्यू दे सकता है। सो जो स्टार्टअप्स कंप्लीटली यूजर्स, विजिटर्स, ऐसी चीजों पे डिपेंड है, उनके लिए इट हैज टू बी द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर, कि वो यूजर उनको लाइफ टाइम में कितना पैसा देगा। तो ये बहुत वेग मेथोडोलॉजीज हैं,
कोई वैल्यूएशन का थंब रूल नहीं है एज सच। बाकी यही एक दो फॉर्मूलाज हैं जो इंडस्ट्री में मोस्टली चलते हैं। सर जब ये चीज़ होती है तो इन्वेस्टर आर्ग्यू नहीं करते इस चीज़ पे कि आपने वैल्यूएशन इतनी बताइए इतनी होगी कि नहीं होगी। आई थिंक मैंने कोई एक फोटो देखा था, उसमें बताया कि बायजूस ने अपनी वैल्यूएशन बताई है 30 बिलियन और इंडियन एजुकेशन एंड टेक सेक्टर की 30 बिलियन। तो देखो इससे तो कोई वो नहीं है, मतलब सी बायजूस, मैंने जैसा कहा कि बायजूस के केस में बायजूस इज अ रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप, तो वो लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट में नहीं है बट रेवेन्यूज उनके पास है। तो उनके लिए वैल्यूएशन कैलकुलेट करना कहीं ज्यादा आसान है क्योंकि वो अपने नंबर्स पे इजीली वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि वैल्यूएशंस का कोई बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, बट जब आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में जाते हो देव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वैल्यूएशन आपके फ्यूचर विजन पे डिपेंड करती है। जो हम लोग फाइनेंस में पढ़ते हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो वैल्यूएशन आपके करंट नंबर्स पे डिपेंड करती है, आपके करंट फॉर्मूलाज पे डिपेंड करती है। बट स्टार्टअप इंडस्ट्री में वैल्यूएशन आपके फ्यूचर विजन पे डिपेंड करती है। अगर आपका फ्यूचर विजन, अगर बायजूस के आज की डेट में 1 करोड़ यूजर्स हैं फॉर एन एग्जाम्पल, और वो फंड रेज करके उसको 10 करोड़ बना सकता है, तो उसकी वैल्यूएशन उस पर डिपेंड करेगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन ऑल ऑनेस्टी और ऑल फेयरनेस की स्टार्टअप इंडस्ट्री में वैल्यूएशन फ्यूचरिस्टिक मॉडल पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन योर करंट नंबर्स। तो आई थिंक यही एक लॉजिक है इस चीज का। ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Sir, you said that you are very much interested in EdTech. So, from your view, what is the future of it? So I think Pritesh, I think there is a lot of innovation yet to happen in EdTech. Unfortunately, when we hear EdTech in India, education tech in India, we only understand one thing, that you take a couple of videos, take a couple of teachers first of all, record their videos, put their courses online and take money from students. But EdTech is also B2B. SaaS में भी बहुत काम हो रहा है एजुकेशन में. There are a lot of other areas where EdTech is developing. Then EdTech is also kids, like young kids, like playing toys, toy education that has really grown in the last couple of months, like how kids can learn their curriculum using some toys. Then EdTech can also be a lot of software solutions. So EdTech has a lot of meaning. So I truly think that EdTech in terms of online courses, that is saturated, and saturated also not in terms of number of people. India is a huge country. You can launch any sort of course and earn money from it. Like, in all honesty, like, we are also selling a lot of courses as a marketing company. We do a lot of digital marketing courses and we successfully do it. But I would not call myself an EdTech company just because I am doing online courses. So that is the biggest gap I feel, that every online course company is now an EdTech company. So I think there is a lot of innovation in a lot of spaces that can come. There is a huge future. There are a lot of other SaaS solutions, school management, course management solutions, learning management, so LMS में बहुत development हो रहा है. So there is a lot of potential in EdTech beyond the online courses. I think I have nothing against online courses, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. आप कितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चलाओगे, they will always work, and it's good. It's good that education is available online so easily and courses are available online so easily. But let's not call them EdTech. So that's the only thing that I'm saying. So EdTech has a huge potential for sure. हेलो सर, अगेन देव. हाँ देव भाई, पूछो. सर, हम पर्सनली कैसे भी कांटेक्ट हो सकता है? एक्चुअली आई एम अंडर, मतलब स्टार्टअप ही है मेरा, इनक्यूबेटर में ही है, और वो कुछ दिनों में एज ए प्राइवेट लिमिटेड भी रजिस्टर हो जाएगा. इट इज अ कॉम्पिटिशन टाइप, तो हमने उसमें फंड, वी हैव राइज द फंड, मतलब फंड मिलता है हमें बहुत सारे फॉर होस्टिंग एंड अदर थिंग्स. सो EdTech में ही कैन बी contact personally. So what I'll do is, Dev, मैं in fact for everybody, मैं अभी चैट में अपना LinkedIn ID डाल देता हूँ. तो मैंने जैसा बताया था, मैं LinkedIn पे सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ. आप में से कोई भी मुझसे LinkedIn पे कनेक्ट करके, यू कैन टेक क्वेश्चंस ऑफलाइन. आप मुझसे LinkedIn पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल.
किसी भी तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई विल बी मोर देन हैप्पी. अगर मैं डायरेक्टली आपके केस में हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो अगर मेरे नेटवर्क में कोई होगा जिससे मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ, डेफिनेटली. ओके सर, थैंक यू. Thank you. I think we are done with questions. Tanya, if you want to. Sure, sir. We'll wrap it up. I Sir, think Chavi was asking something. I'm sorry. Chavi, were you asking something? I just saw it flash. I'm not sure. Anyway, okay, let's move ahead. Tanya, please go ahead. all right. Sir, do you have any final words or a piece of advice for us before you leave? Absolutely. Yeah. So I would just like to close the session. I think one very good part was that, question answers काफी अच्छे थे. I think there were very good questions, which, you usually don't get in college sessions, to be honest, but really good questions, really interested audience. और मतलब you guys coming on a Friday evening for this वही prove करता है that you guys are interested. So I think it was a great session. यार, all that I want to say is that a lot of things in life, they are not focused on startups or funding. Matlab, this session was very focused on raising funding, but you should attend these sessions and workshops and whatever your e-cells are organizing or whatever is happening from a perspective that it will be useful somewhere or the other in your life. So, you might be at very senior positions in startups. You might be at a CXO level in a startup. You might join a startup as an employee. So whatever you do, I mean, you will be able to add value if you attend all these sessions and if you grasp something. All that I aimed was that I could give you some piece of advice which could help you somewhere or the other in life. As for raising funds, I would just again say the same thing, not demotivating anyone, but just want to say कि सिर्फ fundraise करने के लिए fundraise मत करो. Don't do it for the sake of it. Do it if your startup, if your idea really needs it. So वो need understand करना जरूरी है और सही investors ढूंढना जरूरी है. So I think those are the only pieces of advice that I can give, because baki, I mean, I'm always available. As I said, I'm happy to connect with anybody offline. I'll be more than happy. Right. Thank you, sir. Namasha, would you like to give us a formal vote of thanks? Yeah, sure. Thanks, Vinaya. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. And on behalf of ECIL IIT BHU, I thank you for taking out your time for us and sharing your invaluable knowledge and experiences, giving us fruitful insights into raising funds for startups. I'm sure that the takeaways from this session will be beneficial for many. Also, I would like to thank all the attendees who joined in to make this session interactive and engaging. Once again, we extend a warm wave of gratitude to you. Thank you, everyone. Take care and goodbye. Thank you. Thank you so much, Nisha. Thanks. Thank you, everyone. Thanks a lot for having me. Thank you. Thank you so much, guys. Have a wonderful evening. हेलो हेलो. हाँ ऑडिबल है ना? हाँ भैया. तो इसको कैसे निकाला जाए? फिर चला गया मतलब. एक जन होता है. हाँ. Would you like to give a formal, मतलब would you like to give a formal thanks of vote? ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया? मतलब आप देना चाहते हो या नहीं, ये तो देना ही था ना. सॉरी भैया, वो इम्प्रॉम्प्ट. हाँ मतलब ठीक है, वो थोड़ा आगे से जान लेता. बस would you like कुछ नहीं होता है. बाकी सेशन अच्छा हुआ, उसको मजा आ गए होंगे क्वेश्चन आंसर से, लग रहा है. बस इतना थैंक यू मेल डाल देता हूँ. भैया स्ट्रेंथ तो नहीं आती है, मतलब और स्ट्रेंथ आ सकती थी अपने साइड सेशन में. आ जाती है. मीट के लिंक का फकअप हो गया, क्या पता क्या हुआ मीट के लिंक पे, कुछ ध्यान नहीं कैसे हुआ, बट मीट लिंक वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए ये बनाया. और स्ट्रेंथ आती क्या, जितने भी ये छवि समृद्धि ये सब जितने भी नाम थे ना, ये सब मैं था. मैं बैठ के चला रहा था. एक ही जने ने डबल डुप्लीकेट अकाउंट से नहीं ज्वाइन किया. तो शुक्र मनाओ मेरे 6 अकाउंट से चल रहा था, वरना तुम्हारी स्ट्रेंथ में 15 ही लोग दिखते.
भैया ई सेल के ही तो बच्चे नहीं आते हैं, मतलब इवेंट्स टीम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। इतने बार मैसेज डालने के बाद भी उसका थोड़ा सा करो ना कुछ, मतलब सेशंस के। यार ऑनलाइन है, तुमने IIT KGP वाला पढ़ा नहीं क्या कन्फेशन? इसलिए कुछ करते नहीं है। मैं 2 मिनट भेजता हूँ तुम्हें। तुम्हें बच्चों में से किसी ने भेजा था कन्फेशन IIT KGP के बच्चों ने भेजा था। 2 मिनट रुकना। कल ही तो मैंने पढ़ा, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। हर्षित और मैं यही सोच के बैठे कि आज ये नहीं हो जाए अपने साथ। भैया भेजना। भेज रहा हूँ, बहुत लंबा है। अब तुम मत लिख देना, तुम्हारे को पार्टीज वगैरह सब मिल रही है। तुम लोगों से आया तो अच्छा नहीं होगा। भैया हमसे तो नहीं आएगा, हम तो हमसे क्यों आएगा, हम तो खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मस्त पढ़ो। बहुत बड़ा। बहुत लंबा है और साफ साफ लिखा हुआ है एक्सेल। IIT KGP में ई सेल के अलावा कोई सी सेल नहीं है, बस ये बता रहा हूँ। बाकी मेरे को ये बताओगे कि क्या कहते हैं उसका क्या अपडेट है इवेंट स्ट्रक्चर्स का? भैया एक्चुअली अभी ना सब लोग थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो अभी तक हम लोग कर नहीं पाए उसका, बट मतलब डिस्कशन हो गया था एक बार, तो वो करते आते हैं। कर दो यार, वरना वही हो जाएगा कि बाद में किसी और को बोलना पड़ जाएगा कि भाई तुम कर दो। देखो 15 या 16 इवेंट्स के लिखने हैं, बाकी 3-4 इवेंट्स के तो स्ट्रक्चर आएंगे भी नहीं वैसे भी तुम्हारे से। पिचिंग इवेंट का स्ट्रक्चर तुम इससे कॉपी कर सकते हो। 2 मिनट में शेयर करता हूँ लिंक। मतलब अभी एक पिचिंग इवेंट हम लोग भी करा रहे हैं, ईसेल करा रहा है 21 से 28, SR ऑर्गेनाइज करवा रही है पूरा। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, एक ब्रीफ स्ट्रक्चर था और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया उसमें, टाइमलाइन वगैरह ऐड है। देख लेना, ठीक है? हाँ भैया। अब भैया उसमें कुछ कुछ जो इवेंट्स थे, जैसे सिर्फ नाम लिखे हुए थे, CEO ऑफ द डे वगैरह, स्कूल इवेंट CEO ऑफ द डे, उनका कुछ करना है क्या? वही तो कह रहा हूँ कि तुम्हें सबका स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। CEO ऑफ द डे का तो लिख सकते हैं यार, तुम सर्च करना CEO ऑफ द डे क्या होता है इवेंट, तुम्हें इजीली आइडिया लग जाएगा। नक्षत्रा ने बताया था। हाँ, तो जिसने किया है वो इवेंट वो बता देना। मतलब CEO ऑफ द डे में ऐसा होता है कि तुम्हें रैंडम सी कंपनी का CEO, एक स्टार्टअप ले लो या कुछ कंपनी ले लो, उसका CEO बना दिया, उसके बाद तुम क्या क्या कर सकते हो कंपनी के लिए, वो वाला पार्ट है। ठीक है, यही है। और तो आई गेस इवेंट्स टीम को एक्टिव करो या फिर एक बार मीट लेके सबको वापस से मैं बोल दूँ? नहीं भैया, करते हैं हम लोग, कर लेंगे। कोई नहीं कर रहा हो तो बता देना, ऐसे नहीं कि ज़्यादा लोड आ जाए, क्योंकि अभी एंड भी आने वाला है। हाँ भैया, बट स्ट्रक्चर एंड के पहले चाहिए, ठीक है ना? हो जाएगा। थैंक्स यार पोस्ट और थैंक यू नोट देने के लिए। आज तो क्या लगी पड़ी थी, 5 बजे पेपर, 6 बजे मीट। भैया आपकी हो गई क्विज? हाँ, पर अरे मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, इसलिए मैं थोड़ा मतलब वो उस टाइम तुम्हारे कॉल का रिस्पॉन्ड कर रहा था अच्छे से। मैं 5:15 पे स्टार्ट किया था, 5:20 पे क्विज खत्म होना था। चल मेरे को डुबाएगा कैच में, मेरे को लग रहा है। थैंक्स वी डू फॉर इज। बाकी चले, ठीक है। कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना, ग्रुप पे पूछ लेना, PM कर देना, ठीक है ना? इवेंट स्ट्रक्चर लिखो यार, अब थोड़ा स्पीड अप करना है ई-समिट का काम, ठीक है? चलो बाय बाय बाय।